very morning. My name is Priyanshu from BSc Grade Semester, and I am standing to give presentation on topic alternating current of the paper electric circuit and network studies. So let's get started. So let us see what we will see in this presentation. First of all, हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि alternating current होता क्या है, then उसका एवरेज वैल्यू हम लोग डिराइव करेंगे, एवरेज वैल्यू इन बोथ कंप्लीट साइकिल एंड हाफ साइकिल both. Then we will proceed to root this direct value, then some sources using application, then we will conclude our evaluation. So, what is alternating current? So, an alternating current in general is a current that is periodic function of time. Here it is mentioned that periodic function of time. So, periodic function of time का मतलब क्या होगा? That is periodically changing time, right? मतलब हम लोग जब time इस ग्राफ से अगर हम लोग time measure, so we observe that changing the time change the current periodically, right? हम इसको देखते हैं तो और explain करेंगे. Like in other words, we can say that alternating current is one which passes through a cycle of changes at regular interval of time. यानी कि इसमें जो change होता है that is regular interval of time में बराबर होता है, periodic होता है, right? Each cycle consists of two half cycles, during one of which the current is entirely positive and other is entirely negative. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ग्राफ है लाइक ऑल्टरनेटिंग करंट ग्राफ साइनसॉइडल ग्राफ होता है, तो साइन फंक्शन के ग्राफ को ऑल्टरनेटिंग करंट ग्राफ फॉलो करता है. इसमें क्या बोला गया है दैट इज periodic function of time, that is with change in time the graph changes periodically, right? Then it is consists of two half cycles of the growth, right? If you consider time t from 0 to t, first of all it goes to its maximum position in positive direction, then it comes to mean position, then again it comes maximum position in negative direction, and then it comes to gain position. So this whole cycle is called one cycle, right? So this one cycle consists of two half cycles, that is one positive cycle, other is negative cycle, right? Then alternating current, we are basically concerned with the voltages and current which are oscillating sinusoidally without changing amplitude, right? Sinusoidally का मतलब है कि ये alternating current का जो ग्राफ होता है that is a graph of sine function, right? And that is without changing amplitude, यानी कि जो उसका amplitude basically the maximum displacement from its mean position, यानी कि its mean position से जितना displacement positive होगा that displacement negative होगा, that is called without changing amplitude, right? So इसका formula of EMF is given by E equal to E naught sin omega t, and current is given by I equal to I naught sin omega t, where E naught is the amplitude or peak value of the E. Similarly for the I naught also, I naught is the peak value of current, and then omega t is the phase angle. So phase angle basically क्या होता है, हमको यहाँ पे दो प्लॉट किया गया है. जो ब्लू वाला प्लॉट है, दिस प्लॉट इज फॉर वोल्टेज का चेंज, एंड दिस करंट रेड वाला इज फॉर करंट का चेंज. सो फेज एंगल कहने का मतलब ये यहाँ पे तो स्टार्ट सेम पॉइंट से होके सेम पॉइंट मैच कर रहा है. तो क्या होता है ना कि करंट जो होता है ना उसका लाइक देयर इज अ डिफरेंस इन द स्टार्टिंग एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीन पोजीशन, यानी कि ये कुछ वैरी कर जाता है अपने इनिशियल पोजीशन से. ये इसका फॉर एग्जांपल हो सकता है करंट यहाँ से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है करंट पीछे से स्टार्ट हो जाए और यहाँ ना मिलने की वजह से आगे मिल जाए. तो इसको तो मतलब यू कैन से दैट इफ यू कंपेयर टू ग्राफ, सो द रिलेशन ऑफ वन ग्राफ विद ईच अदर दैट इज डिफाइंड बाय द फेज एंगल, यानी कि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ से कैसे रिलेटेड है और कैसे वेरी कर रहा है इसको डिफाइन करने के लिए हमारा क्वेश्चन आता है फेज एंगल, दैट इज represented by omega t, and omega का वैल्यू होता है 2 pi f, where omega is the angular frequency and f is the frequency, right? Now we are aiming to calculate the average value of complete cycle. यहाँ पे तो बेसिकली डेरिवेशन किया गया है इसका, तो इसको हम समझते हैं उससे पहले डेरिवेशन कैसे है. For example, we are given with the formula of alternating current I equal to I naught sin omega t, right? So if we find the average value, we divide by the total time.
we find the rate of change of current, right? So हमारा जो we are aiming to find the average value of one complete cycle, यानी कि जो एक साइकिल हुआ हमारा यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई आर फेज जो एक साइकिल हुआ हम लोग इसमें निकालते हैं कि एवरेज वैल्यू कितना हो रहा है। तो हमारा करंट का वैल्यू क्या है I = I - sin ओमेगा t। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t and divided by dt, right? So यहाँ से I0 is constant, so we are taking I0 as constant, तो बाहर हो जा रहा है। then dt का इंटीग्रेशन q हो जा रहा है। then हमारा जो sin ओमेगा t इसको हम dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। so ओमेगा t मतलब यहाँ पे हम लोग चेंज कराएंगे तो sin ओमेगा t, so ओमेगा t होगा that is then हम लोग ओमेगा से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करके डिवाइड करेंगे, चेंज कराएंगे इसको। then हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारा and the integration of sin is minus cos, तो ये नेगेटिव साइन जो होगा वो बाहर आ जाएगा। then हम लोग के पास I0 ओमेगा t बच जाएगा and cos 2 pi t, यानी कि from here we are getting the value of ओमेगा = 2 pi upon t। हम ओमेगा वैल्यू से पुट कर रहे हैं तो हमको 2 pi t मिल रहा है। हम लोग लिमिट पुट करेंगे, अगर लिमिट प्लस 2 वाला लिमिट तो t के बाद हम लोग t का वैल्यू पुट करेंगे तो t बच जाएगा। then we get cos 2 pi and cos 0। cos 2 pi का वैल्यू होता है 1 and cos 0 का वैल्यू 0 होता है, तो दोनों का 0 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज करंट और अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल इज कमिंग टू 0, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल इज बेसिकली 0। सेम गोस फॉर द EMF इलेक्ट्रोमोटिव प्रोसेस। नाउ हम देखेंगे कि हाफ साइकिल में कैसे इसका होता है। हाफ साइकिल में प्रोसेस सेम होगा, बस we integrate from 0 to t by 2 times। फॉर एग्जांपल ये हमारा t टाइम पर हुआ था, इसका हाफ हम t हाफ हो जाएगा, t by 2 हो जाएगा, यानी हम किसी एक फेज के लिए हम लोग इसमें एवरेज टाइम निकालेंगे। इसी वैल्यू हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से t by 2 तक हो जाएगा। सो सिमिलरली वी आर टेकिंग कांस्टेंट I0 को बाहर ले रहे हैं and negative sign for integration of cos sin and we are putting this integration t by 2 हमको मिल रहा है और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली हम t by 2 पुट करेंगे तो हम लोग का बेसिकली लाइक ओमेगा का 2 by t पुट करेंगे, 2 by t पुट करेंगे और तो t कैंसिल हो जाएगा, इनटू कैंसिल हो जाएगा। देन हमारा कांस्टेंट आ जाएगा माइनस I0 by pi एंड अंदर जो इंटीग्रेशन हम लोग लिमिट पुट करने का वो cos pi और cos 0 आ रहा है। cos pi का वैल्यू -1 होगा और cos 0 का वैल्यू 1 होगा। यस, cos pi का वैल्यू -1 और cos 0 का वैल्यू 1, दोनों में -2 हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस मिलके +2 हो जाएगा एंड यहाँ से हमारा i बच जाएगा 2I0 by pi। सो सॉल्व करने से हमको 0.637 into I0 किया हमको एक फेज में एवरेज वैल्यू हमको मिल रहा है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो the root mean square value we want to calculate the effective value of alternating current is electric current which will pass through a given resistance for a certain time and develop the same amount of heat as the actual alternating current। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रेजिस्टेंस का कंडक्टर है तो उसमें हम एक alternating current को पास करें तो उस alternating current से जितना हीट जनरेट होगा एंड हमें कोई स्टेडी करंट उसी सेम कंडक्टर से फॉर सेम टाइम पास करें तो उसका जो हीट जनरेट होगा दैट विल बी अगर सेम हो गया तो उस हीट उस सेम स्टेडी करंट को हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को देते हैं। तो हमारे पास जूल्स लॉ से हमको फॉर्मूला मिलता है H = I²RT जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो अगर हम लोग रेट ऑफ हीट जनरेट निकालेंगे तो हम T से डिवाइड करेंगे तो I²RT/T हो जाएगा, तो कैंसिल करके हमको फाइनल रेट मिलेगा I²/I²R मिलेगा, सॉरी I²R। सो हम लोग जो हमारा एवरेज वैल्यू था उसको हम लोग IM² से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा 6। कहने का मतलब है कि जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट था और जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट था दोनों इक्वल हो रहा है ना। सो द स्क्वायर वैल्यू ऑफ बोथ टर्म विल बी इक्वल। सो हमको I इफेक्टिव विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट करंट। ठीक है, सो effective value of alternating current is just 12 square
सो यहाँ से हम लोग देखें तो ये स्क्वायर में ये अंदर का टर्म है और ऊपर से रूट लग रहा है, ऐसा भी आप बोलेंगे एज अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो हम इसका एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है। सो सिमिलरली हमारा आई का इक्वेशन सेम रहेगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो हम लोग स्क्वायर वैल्यू निकालना है, सिमिलरली हम लोग आई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी एंड अपॉन dt। सो हम लोग आई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। सो फिर यहाँ से आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट एंड टी का केवल टी ये बाहर आ जाएगा। देन अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t, राइट। तो sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो जो नीचे का 2 है वो हम बाहर ले लेंगे और देन हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 ओमेगा बचेगा। देन हम लोग इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का t हो जाएगा और इसका sin 2 ओमेगा बाय 2 ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो t का t आ जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, b का कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा। अगर हम t यहाँ पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा ना, हम दोनों में t पुट करेंगे, ये t का t रह जाएगा और ये 0 हो जाएगा और 0 के लिए दोनों 0 हो जाएगा और बचेगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इनटू t बचेगा और t कैंसिल हो जाएगा तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2 बच जाएगा। सो इफेक्टिव करंट हो जाएगा हमारा आई नॉट स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर रूट, दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट विल बी 1 बाय √2 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू, यानी कि 1 बाय √2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू करेंगे तो हमको इफेक्टिव RMS वैल्यू मिल जाएगा। सो ये हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे सोर्स कौन सोर्स से हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर सकते हैं, लाइक पावर ग्रिड बेसिकली इज अ नेटवर्क ऑफ वेरी स्मॉल स्टेशंस ट्रांसफार्मर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन दैट डिलीवर द पावर सप्लाई टू आवर होम हाउसहोल्ड वर्क एंड एजुकेशन अदर फैसिलिटी। तो हमारे इंडिया में बेसिकली 50 हर्ट्ज का करंट हमको पावर ग्रिड से सप्लाई किया जाता है। सो पावर ग्रिड इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इन जनरेटर इज अ वेरी कॉमन, ये हम लोग अभी डिटेल में ये बस ब्रीफली बताया कि जनरेटर जो हम लोग भी ना मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अल्टरनेटिव करंट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स होता है तो जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट। देन इन्वर्टर्स क्या करता है कि हम सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल को डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग द इन्वर्टर। सोलर एनर्जी को डीसी करंट से एसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग इन्वर्टर। तो ये भी एक हमारा सोर्स हो जाएगा। एंड अदर इज ट्रांसफार्मर इज आल्सो वेरी कॉमन, लाइक it basically used to change the voltage of AC power, right? Using the step up and step down transformer, we can transmit the alternating current over long distances. So here are some capabilities of the lighting and generators. Solar power, solar energy लेके हम लोग इन्वर्टर की मदद से इसको DC को DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन हमारा कुछ हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन हो गया, हम लोग पानी की मदद से बिजली को जनरेट करते हैं। देन सम पावर सिस्टम्स हो गया, यहाँ से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। देन कुछ यूज हो गया, तो यूज में आ जाएगा पहले हाउसहोल्ड अप्लायंसेस, पहले जितना भी हमारे घरेलू उपयोग में आते हैं लाइक फैन, टीवी, रिमोट, तो टीवी इसमें करेंट होता है, लेकिन इसमें एसी ही आता है उसका कन्वर्ट वो इसमें अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। देन वी हैव कमर्शियल यूज में लाइक होटल्स वगैरह, पैलेस, बिल्डिंग्स वगैरह यूज करते हैं किसी तरह। देन वी हैव इंडस्ट्रियल मशीनरीज, इंडस्ट्रीज यूज करते हैं लाइक वेल्डिंग, वैक्सिंग वगैरह के लिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है लाइक एयरपोर्ट्स, पोर्ट, यूटिलिटीज। देन हमारा रेड क्रॉस वगैरह हो गया, वो सब होता है। सो हमारे एडवांटेजेस क्या हो जाएगा? इट इज इजी टू ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो ऑल्टरनेटिव वोल्टेज होता है ना, इट इज यू कैन ट्रांसफर इजीली यूजिंग द ट्रांसफार्मर्स, ये इसका एडवांटेज हो गया। देन इसमें पावर लॉस ट्रांसमिशन इंटरनेशनल कम होता है, यानी कि जो भी हाई वोल्टेज एसी होता है ना वो करंट को रिड्यूस करके करंट रिड्यूस कर देता है और जो लॉस होता है उसको मिनिमाइज कर देता है। देन कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि जो जनरेटर्स वगैरह होते हैं डीसी जनरेटर दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव है डीसी कन्वर्टर, डीसी जनरेटर्स को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सेफ होता है टू ट्रैवल।
reliable and easy generators. So these are some advantages of alternating